وہ منظر ہے اور آخری رات ہے، امام پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اپنے خیمے والوں کو سمجھا رہے ہیں، کہیں اپنے بہن زینب کو سمجھا رہے ہیں، کہیں اپنی بیٹی سکینہ کو سمجھا رہے ہیں۔ اب سمجھاتے سمجھاتے معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ حضرت شہر بانو کو سمجھا رہے ہیں، اے میری بیوی سن سن، ارے تم تو ملک ایران کی رہنے والی ہو، ایک بادشاہ گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہو، لیکن تو نے اس کو لات مار کر کے تو نے فقیری کو قبول کیا ہے، تجھے مبارک ہو، لیکن سنو اب اگر تم جانا چاہتی تو جا سکتی ہو، اور اگر صبر و شکر کے ساتھ تم زندگی گزارنا چاہتی ہو تو گزار سکتی ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ سمجھاتے سمجھاتے معاملات یہ آئے ہیں کہ کربلا کے میدان کے لیے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے بیٹے چاچا ذرا جا کر کے میدان کربلا کا محاسبہ کر لے، کہیں دشمن ہمارے خلاف کہیں کوئی چال تو نہیں چل رہے ہیں، ذرا جا کر کے میدان کربلا کا محاسبہ کر لے۔ اے لوگوں، جب میدان کربلا میں شفیع پیغمبر اترا ہے، شفیع مصطفیٰ گیا ہے، اور جانے کے بعد جب کربلا کا محاسبہ کر رہا ہے، اے لوگوں جب محاسبہ کرتے ہوئے گئے ہیں، دیکھتے ہوئے گئے ہیں، تو اسی کربلا کے بیچوں بیچ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک عورت ہے جو اپنے چادروں سے کربلا کی مٹی کو بہاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کربلا کی مٹی کو صاف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اے لوگوں جب اتنا دیکھتے ہیں، بول پڑتے ہیں، اے عورت رات کی تاریکی ہے، اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں تم کیا کر رہی ہو؟ اے عورت یہاں پہ تم کیا کر رہی ہو؟ کس چیز کو تم صاف کر رہی ہو؟ کس چیز کو ڈھونڈ رہی ہو؟ اے لوگوں عورت بول پڑتی ہے، اے میرے بیٹے سن سن، میں یہاں کی مٹی کو صاف کر رہی ہوں، میں یہاں کی مٹی کو بہار رہی ہوں، یہاں کے کنکر کو ہٹا رہی ہوں۔ بول پڑتی ہے، بول پڑتے علی اکبر، اے صاف کرنے والی عورت آخر تو کون ہے؟ یہاں کی مٹی کیوں صاف کر رہی ہے؟ تو اے لوگوں سنو سنو، ارے اسی رات کی تاریکی میں آواز آتی ہے، اے میرے پوتے علی اکبر، ارے تو مجھ کو نہیں پہچانتا، ارے میں تیرے بابا حسین کی ماں فاطمہ ہوں، سبحان اللہ۔ اے لوگوں اتنا کہتے ہوئے بول پڑتے علی اکبر، اے دادی جان آپ یہاں پہ کربلا کے میدان میں کیا کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ بول پڑتی ہے، اے میرے بیٹے سن لے، ارے یہ وہی مقام ہے جہاں پہ میرا بیٹا حسین سجدہ کرے گا، اور جب سجدہ کرے گا تو اسی مقام پہ یزیدی اس کے سر کو دھड़ سے الگ کر دیں گے اور نیزے پہ چڑھا دیں گے۔ جبھی تو کہنے والے نے کہا تھا شبیر حق کی شان دکھا کر چلے گئے، راہ خدا میں سب کچھ لٹا کر چلے گئے، کیونکہ نیزہ پہ تلاوت عجیب تھی، قرآن کیا ہے سب کو پتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت دیکھو کربلا کے میدان میں میرا علی اکبر گیا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا کربلا کی مٹی کو صاف کر رہی ہیں۔ اے لوگوں اب 10ویں رات ہے، ختم ہوئے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب کربلا کے لیے اعلان، کربلا کے میدان میں جنگ کے لیے اعلان ہوا ہے، اے حسین اب آ جاؤ، مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ اب کیا دیکھا جا رہا ہے؟ کہیں پہ وہب بن عبداللہ کلبی اپنی جان ساری کو لٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں یہ دیکھا جا رہا ہے حور بن ریاحی ہیں جو اپنے آقا کے قدموں میں، اے حسین میرے وجہ سے آپ یہاں پہ پہنچے ہیں، مجھے معلوم تھا کہ یہ سیاست ہے، لیکن جب میں دیکھا سیاست نہیں یہ بغاوت ہے، یہ دشمنی ہے، یہاں پہ دشمنی نکالا جا رہا ہے۔ اے حسین مجھے معاف کر دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے، ارے میرا نام حور ہے، میں دنیا سے آزاد تھا، میں یہ چاہتا ہوں اب میں جہنم سے بھی آزاد ہو جاؤں۔ میرے امام نے فرمایا تھا یا حور انت حر من النار، اے حور جا میں نے تجھ کو جہنم سے آزاد۔ اب وہاں پہ حور کی جان ساری ہے، کام آتی ہے، وہ بھی جام شہادت کو پیتے ہیں۔ اے لوگوں یہ دیکھا جا رہا ہے وہاں بن عبداللہ کلبی ہیں، وہ بھی جام شہادت کو پیتے ہیں۔ اب دیکھا یہ جا رہا ہے حضرت عباس کے بازو کٹ رہے ہیں، اب یہ دیکھا جا رہا ہے حضرت قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے۔ اے لوگوں اب یہ بھی دیکھا گیا ہے اب وہی حضرت امام علی مقام کا ایک بیٹا ہے جسے دنیا شفیع پیغمبر حضرت علی اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ اے لوگوں اب ذرا غور کیجئے گا، وہ علی اکبر ہیں، اب کہاں گئے ہیں؟ وہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرا وقت پورا ہو چکا ہے، 1 گھنٹہ میں بول چکا ہوں، اب اگر آپ لوگ اجازت دیں تو پورا کر لوں ورنہ ختم کر لوں۔ اجازت ہے؟ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگ جائیں گے؟ ماشاءاللہ ذہنی ایکسیڈنٹ ہے، سنبھال کے بیٹھیں، ذرا زور سے بولے یا حسین، یا حسین، ایسے نہیں حسینیوں کی طرح بولے یا حسین، اور واپس سے یا حسین، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب سنیں شبیہ پیغمبر کی بات آئی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ردائے مبارک کو اپنے کمر میں باندھتے ہیں، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لیتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امامہ شریف کو سر پہ سجائے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ اپنے ہاتھ میں لیے ہیں،
बाबा जान अब्बास के बाजू कट गए। चचा अब्बास ने जामे शहादत को पी लिया है। बाबा जान हजरत कासिम ने भी जामे शहादत को पी लिया है। उनके बाप ने शहादत पाने से पहले अमानत के तौर पे आपके हाथ में दिया था। देने से पहले उन्होंने अपने बेटे के गले में ताबीज के तौर पे वसीयत डाल दिया था, ए हुसैन जब तुम मुसीबत में पड़ना तो सबसे पहले मेरे बेटे कासिम को सामने कर देना। उनके लिए तो रुका मिल गया, वसीयत मिल गई। ए बाबा जान मुझे आप इजाजत देते हैं, इतना सुनना था। 56 साल के हैं हुसैन, जवान बेटे की जवानी तड़प रही है शहादत के लिए। इमाम आली मकाम बोल पड़ते हैं, ए मेरे बेटे बता मैं किस मुंह से तुझे करबला के मैदान में जाने की इजाज़त दूँ? मैं कैसे तुझे भेजूँ करबला के मैदान में? मेरा क्या हक है? बचपने से लेकर के तुझे जवान भी फूफी ने किया है। इतना कहना था। हज़रत अली अकबर बोल पड़ते हैं, बाबा जान भूल मत कीजिएगा, अगर आपने इजाज़त नहीं दिया सुबह कयामत तक ये दुनिया आपको ताना देगी कि भतीजे को भेज दिया, भांजों को भेज दिया, भाई को भेज दिया, सबने जामे शहादत पी लिया, अपने जवान बेटे को बचा लिया। ए बाबा जान हमें ताना नहीं सहना है, ताने से बचना है। बोल पड़ते हैं, बेटा हुसैन अपने कलेजे पे पत्थर रख करके तुझे करबला के मैदान में भेजेगा, लेकिन ए बेटे जा पहले अपनी फूफी जान से इजाज़त ले ले। ए लोगों हज़रत ज़ैनब कभी हज़रत कासिम को भेजी है, कभी अपने भाई अब्बास को भेजी है, कभी अपने मासूम तो लालू को भेजी है, मगर कोई परवाह नहीं है, उनके पेशानी पे शिकन नहीं है। लेकिन जो ही जा कर के हज़रत अली अकबर ने कहा है, ए फूफी जान तेरे बुढ़ापे का सहारा जिसे तूने बड़े नाजो लाड से पाला था, वो अली अकबर करबला के मैदान में जाना चाहता है। ए लोगों इतना सुनना था जैसे लगा ज़ैनब पे बिजली गिर गई हो। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फौरन गश खा के जमीन पे गिर जाती है। करबला के मैदान के अंदर जाने की इजाजत ले रहे हैं। हजरत ज़ैनब जमीन पे गिर गई, गिरना ही था, खेमे के अंदर कोहराम बर्पा हो गया है। हजरत शहर बानो भी करीब हो जाती है, हजरत लैला भी करीब हो जाती हैं। बोल पड़ती हो पाक बीबियां, ए मेरे लाल अली अकबर क्या देखते हो? अपनी फूफी जान के चेहरे से अपना चेहरा मस कर दो। अरे तुझे शबीहे पैगंबर कहा जाता है, शबीहे मुस्तफा कहा जाता है। मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में जिस तरीके से तुझे उनका शफी कहा गया है, वैसे ही तेरे जिस्म से खुशबू भी फूटा करते हैं। अरे उस खुशबू से तेरी फूफी जान को होश आ जाएंगे। हज़रत अली अकबर बोल पड़ते हैं, ए मेरी माँ कैसी बात करती हो? अरे अली अकबर का चेहरा ऐसा नहीं है कि फूफी जान के चेहरे से मस किया जाए। अली अकबर का चेहरा ऐसा है कि फूफी जान के तलबे से मस किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करना ही था। हज़रत ज़ैनब आंखें खोल, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, को खोली है। बोल पड़ती है, ए मेरे बेटे बता मैं किस मुंह से तुझे करबला के मैदान में जाने की इजाजत दूं? ए मेरे बेटे मैंने अपने बेटों को भेजा मगर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ए मेरे बेटो सुनो, ए मेरे बेटा सुन, अब मैं तुझे करबला के मैदान में भेजने की ताब नहीं ला पा रही हूँ, मैं नहीं भेज पाऊंगी। हज़रत अली अकबर मन्नत व इसरार करते जा रहे हैं। अल-मुख्तसर मामला ये होता है, अल-मुख्तसर मामला ये हुआ कि अब उनको इजाज़त दे दिया गया है। जब इजाज़त दिया गया तो जाते हैं अपने मासूम भाई के पास, अपने मासूम भाई के पास जाते हैं जिनकी उम्र 6 माह की है। सुभान अल्लाह, 6 माह के झूले में झूल रहे हैं। जाकर के हज़रत अली अकबर ने कहा था, ए मेरे भाई देख तेरा बड़ा भाई जामे शहादत को पीने के लिए जा रहा है। ए मेरे भाई क्या तू अपने भाई को दुआएं नहीं देगा? ए मेरे भाई जरा अपने भाई को तू दुआ दे दे। ए अली असगर जरा दुआ दे दे अपने भाई को, तेरा भाई जा रहा है, जरा देख जामे शहादत पीने के लिए जा रहा है। ए लोगों इतना कहना था, झूले को झुलाए हैं। ए लोगों वली ना वली निशनासत, एक वली को वली पहचानता है। तो ए लोगों जब एक वली को वली पहचानता है तो ये बताओ क्या एक शहीद को शहीद नहीं पहचानता होगा? जरूर पहचानता होगा। ए लोगों अरे वो घराना है, अरे उस अली के घर का हर बच्चा शेर खुदा
मालूम होता है, पैदाइशी पैदाइशी शेर खुदा मालूम होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु झूले को झुलाए हैं, तब तक क्या देख रहे हैं? 6 माह का मासूम है, अपने जबान को बाहर करके ये एहसास दिला रहा है, ए मेरे भाई अली अकबर मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। ए मेरे भाई मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। लेकिन ए लोगों, उस वक्त अली अकबर ने कहा था, ए मेरे भाई, तेरा भाई तो जा रहा मैदान कारज़ार में जामे शहादत पीने के लिए जा रहा है, अब तो तुझे पानी नहीं पिला सकता। हाँ, इतना याद रख, अन करीब तू भी जामे शहादत को पीने वाला है। ए मेरे भाई, अरे पानी पी करके क्या करेगा? शहादत के जाम को पीले, कसम खुदा की तू मचलता रहेगा। सुभान अल्लाह। अब दोनों भाइयों में बातें हुई हैं, अब बातें करने के बाद आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ने के बाद गए हैं और जाकर के आगे बढ़ने के बाद बढ़े हैं और जाकर के अपने बीमार भाई ज़ैनुल आबिदीन से मिल जाते हैं। ए मेरे भाई, ये बता, तेरा भाई मैदान कारज़ार में जा रहा, क्या तू इजाजत नहीं देगा जाने के लिए? ए लोगों, हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, बीमार करबला हैं, उठना चाह रहे हैं ताकि अपने भाई को गले से लगा करके करबला के मैदान में भेज दूं। लेकिन ए लोगों, कमजोरी का ये हाल है, नकाहत का ये हाल है कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन कांप रहे हैं, उनके जिस्म में कंपन है, उनके पैरों में कंपन है। कमजोरी और नकाहत इस कदर की बिस्तर से उठ नहीं पाए, धाड़े मार करके रोने लगे। कहे ये कैसी अल्लाह की मदद है, ये कैसे मामलात है कि आज मैं अपने भाई से मुलाकात तक नहीं कर पाया। मेरा भाई जा रहा, अब तो ऐसा लग रहा है मेरा भाई मुलाकात नहीं कर पाएगा, अब मैं अपने भाई से मिल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं अपने भाई से मुलाकात नहीं कर पा रहा हूँ। ये लोग इतना कहते हुए फौरन अपने भाई के ऊपर लेट जाते हैं और सीने से सीने को मिला करके धाड़े मार करके रोना शुरू कर देते हैं। ये लोगों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीने पे पीठ पे पुष्ट पे हाथ फेरते हैं और उधर से यजीदी ये कह रहे हैं, हल मिन मुबारिक है कोई जो आए मुकाबले के लिए। ए हुसैन, क्या हुआ? अरे तुम्हारे जानसारों के बाजू शील हो गए, अरे आते कौन मैदान कारज़ार में? इतना कहना था, अली अकबर बोल पड़ते हैं, बाबा जान यजीदी ताने दे रहे हैं, उन भेड़ियों से जाकर के कह दीजिए, अरे अभी अली का शेर बबर मौजूद है, अभी अली का शेर मौजूद है, अभी आएगा और बपरे हुए शेर के ऊपर तुम्हारे ऊपर जरूर झपटेगा। घबराओ नहीं, अनकरीब अली अकबर आ रहा है, तुझे जहन्नम में पहुंचाने के लिए आ रहा है। इतना कहते हुए गए हैं और अपनी फूफी जान के पास पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं, ए फूफी जान, अब मैं बढ़ रहा हूँ, जा रहा हूँ करबला के मैदान में। ए लोगों, अब गए घोड़े पे जूही बैठे हैं, हज़रत इमाम हुसैन इशारा करते हैं, घोड़े पे बैठ जाते हैं। जब घोड़े पे बैठे हैं ना, तो जानते हो हज़रत सकीना जिनकी उम्र 6 साल की है, आती हैं और आने के बाद अपने आंचल को फैला देती हैं और फैलाने के बाद कहती है, ए मेरे भाईजान, मैंने देखा है कि जब दूल्हा बनने वाला जब दूल्हा बना करता है तो उसकी बहनें अपने आंचलों को फैला करके सदका और खैरात मांगा करती हैं, बलाएं उतारा करती हैं और कुछ नेक लिया करती हैं। ए मेरे भाई अली अकबर, तुम ही तो एक जवान मेरे भाई हो, तुम ही तो एक दूल्हा बने हो। अरे उस बच्ची को क्या मालूम था, अरे ये दूल्हा बन करके कहीं और नहीं जा रहा है, बल्कि ये दूल्हा बना है तो रब के घर का दूल्हा बना है। ये दूल्हा बना है किसी और के लिए नहीं, बल्कि दीने मुस्तफा के लिए दूल्हा बना है। ये ऐसा दूल्हा बना है जिसके बारे में कुरान पाक कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता वला यहयू वलाकिन तशऊरून। अरे ये वो है जो अल्लाह के राह में शहीद किए जाएं, उन्हें मुर्दा न शुमार करना, बल्कि वो जिंदा है और अल्लाह की तरफ से उन्हें रिज़्क़ देता है। तुम्हें शऊर नहीं है उनकी जिंदगी के बारे में। ऐ लोगों, जरा गौर कर लेना। अब हज़रत अली अकबर है, जो ही उनकी बहन ने अपने आंचल को फैलाया, ए मेरे भाई, अरे कुछ तो अता कर दो अपने बहन को, इतना कहना था। हज़रत अली अकबर है, चारों तरफ देखते हैं, देखने के बाद जब सोचते हैं तो हज़रत अली अकबर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो आंसू आए तो वही आंसू के चंद कतरे हैं जो अपने बहन के आंचल में डाल देते हैं और कहते हैं, ए बहन, ले इसे संभाल के रखना, तेरे भाई के पास इस वक्त इसके अलावा कुछ नहीं है। बोल पड़ती है, मेरे भाई ये क्या है, क्या यही नेक है? बोल पड़ते हैं अली अकबर, हाँ बहन, यही नेक है, इसी को नेक कहते हैं। ए बहन, इसे मामूली न समझना, बल्कि ए बहन सकीना, इसे संभाल के रखना, हिफाजत से रखना। और ये आंसू मामूली आंसू नहीं है, बल्कि कल कयामत के मैदान में नाना जान के गुनहगार उम्मत को बख्शवाने में और कर लेना, जरा गौर कर लेना। हज़रत अली अकबर हैं, अब पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जो ही पढ़ रहे हैं, मदीने पाक की जानिब अपने चेहरे को किए हैं और करने के बाद
धाड़े मार करके रोना शुरू कर दिए हैं। सावन भादो के तरह आंसू गिर रहे हैं। ज़ैनब बोलती है, मेरे लाल, क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी? क्या मैंने अपने भतीजे को सही से पाला नहीं था? हजरत शहरबानो बोल पड़ती है, क्या मेरे दूध पिलाने में कोई कमी रह गई, परवरिश करने में कोई कमी रह गई? जो मेरा बेटा अली अकबर रो रहा है, जिसे शबीह पैगंबर दुनिया कहती है, शबीह मुस्तफ़ा दुनिया कहती है, आज वो अली अकबर रो रहा है। इमाम हुसैन बोल पड़ते हैं, मेरे बेटे, क्या 22,000 की फौज को देख करके डर गए? इतना कहना था। अली अकबर बोल पड़ते हैं, ए बाबा जान, कैसी बात करते हो? अरे जिसके अंदर अरे शुजाअत का ताजदार हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब का खून मौजूद हो, अरे उस अली का खून मौजूद हो, जिसकी तलवार चले तो फरिश्ते कहे शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र सौदाए करबला, जिक्र सौदाए करबला, किताबे हुसैन, कुरान हमारा, कुरान हमारा, ईमान हमारा, ईमान हमारा, इस्लाम हमारा, अली अखाड़ा, अली अखाड़ा, नारे तकबीर। इमाम अली अकबर बोल पड़ते, बाबा जान, हुसैन का बेटा हूं, आपका लाल हूं, मैं इन यजीदी भेड़ियों से डर जाऊंगा? बाबा जान, मैं इनसे डर के नहीं रो रहा हूं, बल्कि अहले बैत कभी वादा खिलाफ नहीं करते हैं, मैं वही सोच के रो रहा हूं। हुसैन ने कहा, बेटे, वादा खिलाफी क्या हुई? हजरत अली अकबर कहते हैं, ए बाबा जान, उस वक्त को याद कीजिए जब हम लोगों ने मदीने पाक को खैराबाद कहा था, और बहन सुगरा ने जब जिद की थी आने के लिए, तो मैं कहा था, ए बहन सुगरा, न घबरा, अनकरीब तेरा भाई अली अकबर आएगा और तुझे अपने साथ लेकर के कुफा जाएगा। मैं 1 महीने का वादा किया था, लेकिन 3 महीने का जमाना हो गया। मैं अपनी बहन से जो वादा किया था, वादा पूरा न कर सका। है बाबा जान, आज जो अली अकबर रो रहा है, इन यजीदी भेड़ियों को देख करके नहीं, बल्कि जो अपनी बहन से वादा किया था, इस वजह से रो रहा है। ए बाबा जान, अब तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी, अब कह दीजिएगा, वसीयत कर दीजिएगा कि अगर फूफी जान अगर मदीने पाक जाएं तो कह देंगी कि जो मैंने वादा खिलाफी किया था, मेरी बहन सुगरा माफ कर दे, और कह दीजिएगा अली अकबर से अब दुनिया में मुलाकात नहीं होगी, बल्कि कल क़यामत के मैदान में नाना के हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। सुभान अल्लाह। अब अली अकबर है, फिर से आवाज आती है, हल मिन मुबारिक, है कोई जो मुकाबले के लिए आए? ए हुसैन, क्या हुआ? तेरे चाहने वालों के बाजू शील हो गए। इतना कहना था। हजरत अली अकबर हैं, घोड़े पर सवार हुए हैं और चले हैं मैदान कारजार में। जब करबला के मैदान में जाकर के खड़े हुए हैं, जब चूही यजीदियों ने देखा है कोहराम बरपा हो गया है, अरे भागो भागो, मैदान को खाली करो, कौन है लड़ने वाला? ये तो मदीने पाक से मुस्तफा आ गए हैं, अरे ये तो वो नबी आए हैं जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ है, जिनका दीन है, जिनका इस्लाम है, जिनका हम कलमा पढ़ने वाले हैं, अरे वो तो नबी मदीने पाक से आ गए हैं, अरे वही नबी है या उनका शफी अली अकबर है। इतना कहना था। अली अकबर बोल पड़ते हैं, ओ यजीदियों, भागते कहाँ हो? अरे भागते कहाँ हो? मैं मुस्तफा नहीं हूँ, अरे मैं तो शबीह मुस्तफा अली अकबर हूँ, अरे मैं मुस्तफा नहीं हूँ, बल्कि मैं हुसैन का बेटा अली अकबर। सुभान अल्लाह। कहाँ जाते हो? आओ मुझसे मुकाबला के लिए। अल मुख्तसर खुतबा दिए हैं, खुतबे के साथ साथ इमाम हुसैन ने ललकारा, आओ यजीदियों, आ जाओ मुकाबले के लिए। लेकिन ये लोगों, किसी यजीदी भेड़िए के अंदर ये ताकत न थी जो शेर बबर के सामने जाकर के पंजा मिला सके। जब अली अकबर ने देखा कोई मुकाबले के लिए तैयार नहीं है, हजरत अली अकबर खुद ही मैदान कारजार में दौड़ जाते हैं और घोड़े को दौड़ाए हैं। कभी मैमना पे हमला कर रहे हैं, कभी मैसरा पे हमला कर रहे हैं, कभी कल्ब पे हमला कर रहे हैं, कई सौ भेड़ियों को काट डाला है। और ये लोगों, जब हजरत अली अकबर की तलवार चल रही है तो ऐसा लग रहा था जैसे अली अकबर की तलवार में सितारों ने जगह बना लिया हो, ऐसा लग रहा था जैसे चांद सूरज ने मस्कन कर लिया हो, ऐसा लग रहा था जैसे फातिमा ज़हरा की रिदाए मुबारक उठ गई हो, ऐसा लगता था जैसे बाबा अली दुआ दे रहे हो, ऐसा लग रहा था जैसे मुस्तफा जाने रहमत मदीने पाक से आकर के करबला में तबसे शफकत फेर रहे हो और आमीन आमीन कह रहे हो। इन लोगों, अरे जब मौलाए कायनात के उस पोते के जब तलवार चल रहे थे और जब मैदान कारजार में उतर करके
اور گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت علی اکبر کو پیاس کی شدت نے ڈھال دیا، گھوڑے کو گھماتے ہیں اور جاتے ہیں میدان کربلا سے نکل کر کے خیمے کی طرف۔ بابا جان، بابا جان، اگر لڑنے میں کوئی کوتاہی یا کمی ہو رہی ہو تو بتا دیا جائے۔ نہیں میرے لال، تو لڑ رہا ہے نا تو بابا کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، تو لڑ رہا ہے نا تو خانوادے کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ اے میرے لال بڑا بہتر لڑ رہا ہے، لیکن حضرت علی اکبر بول پڑتے ہیں، اے بابا جان، پیاس کی شدت نے اس قدر ہمیں تڑپا دیا ہے کہ اب علی اکبر تلوار نہیں چلا سکتا۔ اے بابا جان، اگر پانی کے چند گھونٹ مل جاتے تو میں یزیدیت کو بتا دیتا کہ حسینی گھرانہ ہوتا کیسا ہے، حسین کے گھر والے ہوتے کیسے ہیں۔ اے بابا جان، پانی کے چند گھونٹ مل جاتے۔ مولا حسین بول پڑتے، اے میرے بیٹے، تو اس کے علاوہ جو کچھ بھی مانگے گا مل جائے گا، مگر سب پانی نہیں دے سکتا۔ اے میرے بیٹے علی اکبر سن، جب میں بچپنے کے عالم میں تھا، جب مجھے پیاس ستا دیا کرتی تھی تو میرے نانا جان اپنے زبان مبارک کو میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے اور میں زبان مصطفیٰ کو چوسا کرتا تھا، میری پیاس بجھایا کرتی تھی۔ اے حسین، اے علی اکبر سن، اب وہی حسین ہے، اب اپنے زبان کو تیرے منہ میں ڈالتا ہے، لے چوس لے۔ اے لوگوں، یہاں پہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات میں کہہ کے گزر جاؤں گا، دنیا بڑی بھونک رہی ہے، زبان اس کے پاس ہے، بھونک لے، لیکن اتنا یاد رکھ، کل قیامت کے میدان میں تجھے حساب دینا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین حق پر نہیں تھے، معاذ اللہ۔ کوئی یہ کہتا ہے اولیاء کرام مر کر کے مٹی میں مل گئے، کچھ دیتے نہیں ہیں، ان کی قبروں کے پاس پہنچ جاتے ہو تو خود ہی محتاج ہے۔ ان لوگوں کتابوں کے اندر آیا ہے، اولیاء کرام کا حال تو یہ رہا ہے کہ جب وہ دینے پر آئے ہیں، حضرت شمال الدین جمال الاولیاء ہیں جنہوں نے اپنے زبان کو چسا کر کے چند منٹ میں اپنے ایک خادم کو حافظ قرآن بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ، حافظ قرآن بنا دیا تھا۔ ارے ایسے ولی کامل گزرے ہیں کہ اپنے سینے کو سینے سے لگایا ہے تو اس سینے کو علم کا خزینہ بنا دیا ہے۔ تو ان لوگوں، ارے جب بے غلام کا یہ حال ہے تو ذرا بتاؤ آقا کا حال کیا ہوگا جب میرے نبی نے، جب میرے مصطفیٰ نے حسین کو چسایا ہوگا تو حسین کا علم کا عالم کیا ہوگا، حسین کے تقوی کا عالم کیا ہوگا، حسین کے کرم اور فیضان کا عالم کیا ہوگا۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کہنا پڑے گا، ارے چسانے والا کون تھا؟ مصطفیٰ۔ چسنے والے حسین۔ تو ذرا بتاؤ حسین کے تقوی کا، حسین کے پاور کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میرے عزیز اور دوستو، اب حضرت علی اکبر کو زبان کو چسائے ہیں اور میدان کارزار میں بھیجے ہیں، گئے حضرت علی اکبر پھر جنگ کر رہے ہیں، کاٹتے گئے، کئی ہزار یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا دیا ہے اور پہنچانے کے بعد پھر آئے ہیں، اے بابا جان، چند گھونٹ پانی کی مل جائے تو میں یزیدیت کا تماشا یہ ختم ہی کر دوں گا زندگی بھر کے لیے۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں، اے علی اکبر، یہ رب کو منظور نہیں ہے بلکہ رب کو کچھ اور منظور ہے۔ اے علی اکبر، دیکھ تیرے دادا علی اپنے دامن کو پھیلا کر تجھے یاد کر رہے ہیں، دیکھ تیری دادی فاطمہ ہے پانی لے کر کے تجھے یاد کر رہی ہیں۔ اے علی اکبر، جام شہادت کو پی لے، اپنی دادی کے پاس چلا جائے۔ لوگوں، ارے کون باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو اس قدر جام شہادت کے لیے بھیجے گا؟ آج تو ہم کہا کرتے ہیں بیٹا جا رنڈیوں کے سامنے جا کر کے ناچ لینا، پیسے کو پھینک لینا، واہ واہ میرا بیٹا ہے، جا کر کے ان کے ساتھ ناچتا ہے، میرے بیٹے نے کیا کمر کو ہلایا ہے۔ ارے تمہاری زندگی پر، تمہارے زندگی پر لعنت ہے، ایسی زندگی پر۔ ارے بتا اب تیرا بیٹا کیا غلام غوث بنے گا، غلام خواجہ بنے گا؟ ارے ہاں تیرا بیٹا بنے گا تو غلام ڈی جے بنے گا، غلام آرکیسٹرا بنے گا، غلام نچنیا بنے گا۔ قسم خدا کی، اگر تو نے اپنے بیٹے کو کربلا والوں کا پیغام دیا ہوتا تو تیرا بیٹا حسین تو نہیں بنتا، غلام حسین ضرور بنتے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میرے عزیز اور دوستو، اور پیغام دیتا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ سبحان اللہ۔ پر گئے ہیں اور جام شہادت کو پیا ہے، ظالموں نے گھیر لیا، نرغے میں لیا ہے۔ حضرت علی اکبر پہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے علی اکبر پر، اور حضرت علی اکبر ہے زمین پہ گر جاتے ہیں، آواز جا جاتا ہے، اے علی اکبر، اے حسین، اپنے
अपने जवान बेटे का लाशा संभाल के ले जाओ। ए लोगों, इमाम हुसैन जाते हैं तो कहीं हजरत अली अकबर के हाथ को काटा जा रहा है, कहीं पैर को काटा जा रहा है, कहीं सर को काट करके इधर दौड़ाया जा रहा है, इधर फेंका जा रहा है। हजरत इमाम पाक कभी पैर की तरफ बढ़ रहे हैं, कभी हाथ को उठा रहे हैं, कभी सर को उठा रहे हैं और यजीदी परेशान करते हैं। तब हुसैनी शेर ने ललकारा इमाम अली मकाम ने, जब दहाड़ा है तब ये यजीदी छोड़ करके भागे हैं, जब भागे हैं इमाम अली मकाम है। ए लोगों जरा बताओ, अरे 56 साल की उम्र में अपने जवान बेटे के जिस्मों के टुकड़ों टुकड़ों को संभाल रहा है और एक पोटली में, एक गट्ठर में बांध रहा है, एक चादर में बांध रहा है। कलेजा रखते हो, जरा अपने सीने पे हाथ रख करके बताओ कि आपका जवान बेटा हो, मरा ही नहीं बल्कि उसको बोटी बोटी काट दिया गया हो, आपको उठाना पड़े तो आपकी हालत क्या होगी। ए हुसैन, आपकी शुजाअतों को सलाम ये दुनिया करती है। ए हुसैन, आपकी बहादुरी को सलाम ये दुनिया करती है। ए लोगों, इमाम अली मकाम है, तमाम गोश्तों को उठा रहे हैं और तमाम जिस्मों के टुकड़ों को उठा करके रख रहे हैं। ए लोगों, जब उठाए हैं और उठाने के बाद एक गट्ठर में बांधे हैं और बांधने के बाद इमाम अली मकाम उठाना चाह रहे हैं, मगर ए लोगों, इमाम अली मकाम उठा नहीं पा रहे हैं। हजरत अली अकबर का लाशा उठने का नाम नहीं ले रहा है। पूछ पड़ते हैं बेटा अली अकबर, अरे अब अपने बाप पे कितना जुल्म करेगा, अब तो उठ जा कम से कम, अपनी जगह को छोड़ दे। तो इन लोगों, अरे उसी गट्ठर से आवाज आती है, बाबा जान जरा सब्र कर लो, रुक जाओ, देखो ना दादी फातिमा आ रही है उठाने को, बाबा अली आ रहे हैं उठाने को, नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने पाक से आ रहे हैं उठाने को। ए बाबा जान रुक जा जरा, ये लोग भी आ जाए और मेरे लाशे को कांधा दे ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहाँ तक बयान करने वाले बयान करते हैं, 56 साल की उम्र है और हजरत इमाम अली मकाम की दाढ़ी पाक, ये जो रीशे मुबारक है, ये स्याह है, काली है। करबला के मैदान में अली अकबर को भेजे हैं तो इमाम अली मकाम की रीशे मुबारक ये क्या है, काली है, काले नजर आ रहे हैं। लेकिन ये लोगों, जब हजरत इमाम अली मकाम करबला के मैदान से अपने बेटे के लाश को उठा करके और जब खेमे में लेकर के पहुंचे हैं तो उस गम के वजह से हजरत इमाम हुसैन की पूरी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, सफेद हो चुकी थी, सफेद हो चुकी थी। ए लोगों, लाओ, अरे सब्र लेकर के आओ, पूरी दुनिया के सब्र को एक पल्ले पे रखा जाएगा और सब्र हुसैन के एक झलक को एक पल्ले पे रखा जाएगा तो सब्र हुसैन का एक झलक पूरी दुनिया के सब्र पे सुभान अल्लाह। ए लोगों, जरा गौर कर लो। अब जब गए हैं, जानते हैं इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे को लिख करके गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, खेमे में कोहराम मच गया है। अल मुख्तसर में आप रात को एक वाकया बता करके गुजरना चाहता हूँ, एक वाकया बता करके गुजर जाऊँ, बस तेजी के साथ सुनिएगा। दमिश्क का वो कैद खाना है जो यजीद का कैद खाना है, जहाँ पे हज़रत सकीना ने आखिरी सांस को लिया था, आखिरी सांस को लिया था। मेरे अजीज और दोस्तों, वक्त होता तो मैं इसे भी आप रात के सामने बताता, मेरे वक्त मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह ताला फिर अगर मौका मिला तो आप रात के सामने मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। दुआ है मौला की बारगाह में बोलने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उस पर तमाम और उसके बाद तमाम सामिल उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद वो 72 शहीदों का है काफिला, सर कटाया मगर सर झुकाया नहीं। सय्यदों की जमाअत को घेरे हुए जुल्म क्या क्या यजीदों ने उठाया नहीं। हाशमी फौज की क्या शुजाअत वो थी, दर हकीकत शहादत वो थी। मश्क हाथों से छोड़ी न अब्बास ने अपने बाजू को जब तक कटाया नहीं। रो रो कहती थी ये करबला की जमीन, सर झुका कर ये कहती थी अपने तई मेरे मेहमान थे आले पैगंबर, मगर मैंने पानी तक उनको पिलाया नहीं। जश्न शहीद आजम जिंदा, वसीम अख्तर पाइंदा, बकिया आइंदा। अस्सलाम।